गुड मॉर्निंग अगेन एंड वेलकम टू अवर इकोनॉमिक्स क्लास। आई थिंक आपको जो भी टेस्ट हुए थे आपने अच्छे से पेपर सोल्व किया होगा इनको का एंड इट्स अ वेरी सिंपल पेपर। आई थिंक ऑल ऑफ यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द टेस्ट। हमारा जो लेसन अब तक आपने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। हमने पहले पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द यूटिलिटी एनालिसिस। उसके अंदर आपने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर रिलेशंस। You also study consumer equilibrium with the help of single commodity model and with the help of two commodity model. All these we study in the cardinal approach or utility analysis. उसके बाद आपके आता है ordinal approach. In the ordinal approach we study meaning of indifference curve, its features. We also study price line and different conditions. We also study marginal rate of substitution why the indifference curve is convex to the origin point. And in the last of this class, today we study about the consumer's equilibrium with the help of ordinal approach or with the help of indifference curve. Before it, I like to revise the meaning of consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium means it's a condition when a consumer is getting maximum satisfaction from the consumption of different units of the commodity and do not want to make any change in its existing conditions. When prices, consumer income are given and remain constant. It means एक normal condition में जब consumer की income given है, commodities के prices given है, constant रहते हैं, तो consumer को जहाँ पर maximum satisfaction हो रहा है और consumer उस condition को छोड़ना नहीं चाहता. It's the condition of consumer's equilibrium जो पहले हमने पढ़ा है single commodity model में, two commodity model में और आज हम इसको पढ़ेंगे indifference curve की help से. Okay. Then we study what are its conditions. If we have to find out consumer's equilibrium, what are its conditions? There are three conditions of the consumer's equilibrium. First is indifference curve and budget line are tangent to each other. किस particular point पर indifference curve और budget line दोनों एक दूसरे को टच करेंगे. Second, the indifference curve is convex to the origin point. It means at the equilibrium point the indifference curve is convex to the origin point. And the third is at the point of equilibrium the slope of indifference curve and the slope of budget line will be same. Indifference curve का slope और जो budget line का slope है वो भी equilibrium condition में same होगा. पर इसके लिए आपको अच्छी देखनी है how we can find the slope of indifference curve. आपने पहले पढ़ा है we can find the slope of indifference curve with the help of MRSXY. It means marginal rate of substitution of X for the Y. If we increase consumption of X commodity, we have to reduce the consumption of Y commodity because we want that consumer remains on same level of satisfaction. तो जैसे हम X का consumption बढ़ाते हैं तो बदले में Y का कम करेंगे और जिस रेट पर हम Y का कम कर रहे हैं it is the marginal rate of substitution. And this marginal rate of substitution decides the slope of indifference curve. If this MRSXY decreases, it means the indifference curve is convex to the origin point. दो बातें. MRSXY की वजह से जो indifference curve है वो बनता है आपका downward sloping और दूसरा अगर MRSXY decrease हो रहा है तो MRSXY के decrease होने की वजह से indifference curve का slope कैसा बनेगा? Convex to the origin point. सेकेंड आपके आता है बजट लाइन और प्राइस लाइन. जैसे कि हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है पीएल बजट लाइन और प्राइस लाइन. अब इसका जो स्लोप है वो डिसाइड होता है विद द प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई. हाउ वी कैन डिटरमाइन इट? विद द हेल्प ऑफ पीएक्स एंड पीवाई. प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी. फॉर द रेशियो बिटवीन पीएक्स एंड पीवाई वी कैन डिटरमाइन द स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन. सो व्हेन वी फाइंड दैट देयर स्लोप इज सेम, हम क्या चाहते हैं कि स्लोप सेम हो, तो सेम होने की कंडीशंस में क्या होगा? MRSXY will be equal to the PX upon PY. MRSXY क्या डिसाइड कर रहा है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. PX upon PY क्या डिसाइड कर रहा है? स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन. हम चाहते हैं कि दोनों का स्लोप बराबर हो, तो सिचुएशन में क्या होगा कि जो MRSXY है और जो प्राइस रेशियो हमारा PX और PY दे आर इक्वल. देखो ये क्या हो गया हमारे लिए? बजट लाइन जो हमेशा स्ट्रेट होती है. इसका स्लोप कौन डिसाइड करता है? प्राइस रेशियो px अपॉन py. दूसरा MRSXY
जो कि स्लोप डिसाइड करता है इंडिफरेंस कर्व का। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने मान लीजिए पॉइंट ले लिया डी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों का स्लोप सेम है। अब ये कैसे है कि mRSXY और px अपॉन py यहां पर दोनों हमारे लिए इक्वल होंगे। जब हमने इसका शेड्यूल बनाया था दोनों का, mRSXY का और px py का, तो mRSXY कितना आ रहा था अगर आपको याद होगा, 4:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1। और जब आपने प्राइस लाइन बनाई थी तो आपने जो डेटा ली थी उसके अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ एक्स 20 रुपीज और प्राइस ऑफ वाई कितना था 10 रुपीज। सो देयर रेशियो 20/10, इट मींस 2:1। तो px अपॉन py आपका सब जगह कितना आएगा 2:1। अब जहां पर ये दोनों इक्वल है, 2:1 इक्वल टू 2:1, at this point slope of indifference curve and the slope of budget line will be set. Okay, so to find the consumer's equilibrium we have to follow all these three conditions कि जहां पर ये तीनों कंडीशन, तीनों शर्तें पूरी हो रही है, वहीं पर हमारे लिए क्या होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम क्या फाइंड करेंगे वहां पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। हमने इसके लिए अच्छा एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम की हेल्प से हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड करेंगे। आप पहले बेटा डायग्राम समझना। हमने यहां पर लिया x एक्सिस पे x कमोडिटी और y एक्सिस पे y कमोडिटी। PL is the price line or budget line. IC1, IC2 and IC3 are the three indifference curve for the consumer. IC curve and price line touch to each other at A and C point, while IC2 and price line touch to each other at B point, and IC3 not touch the budget line or price line. IC1 budget line price line तो दो जगह टच कर रहा है, A और B पॉइंट पर, जबकि IC2 B पॉइंट पर टच कर रहा है और तीसरा IC3 कहीं पर भी प्राइस लाइन को टच नहीं कर रहा। इसका मीनिंग क्या है कि कंज्यूमर IC3 के किसी भी कॉम्बिनेशन को ले ही नहीं सकता। इट्स आउट ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर उसके बाहर है कि गिवन इनकम से कंज्यूमर उसको कहीं पर भी परचेज नहीं कर सकता। ओके, नाउ वी सी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ थ्री कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या थी कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन दूसरे के टेंजेंट को टच करे। आप देखना इंडिफरेंस कर्व IC1 बजट लाइन को A और C पॉइंट पे टच कर रहा है, जबकि इंडिफरेंस कर्व IC2 B पॉइंट पे टच कर रहा है, IC3 कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो कंज्यूमर के पास तीन ऑप्शन होंगे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग A, C and B, while consumer will prefer B point। अब कंज्यूमर A पॉइंट भी ले सकता है, कंज्यूमर C पॉइंट भी ले सकता है, कंज्यूमर B भी ले सकता है, पर कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा यहाँ पर, he will prefer the B point। Why? Because B point is on IC2 while A and C point are on IC1, and we know that IC2 give more satisfaction than IC1। ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व, हाई लेवल इंडिफरेंस कर्व हमेशा कंज्यूमर को लोअर लेवल इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो कंज्यूमर को B पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कंपेयर विद द A and C। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा B पॉइंट पर। Second, the slope of indifference curve and the slope of budget line will be same. If we see in the diagram at the B point, mRSXY equal to px upon py। mRSXY डिसाइड कर रहा है slope of indifference curve, px upon py डिसाइड कर रहा है slope of budget line और price line, और at the B point both are same। अगर हम इसको बाकी के दो पॉइंट से कंपेयर करेंगे जहां पर कंज्यूमर के लिए रीचेबल है A and C, A पॉइंट पर क्या हो रहा है mRSXY greater than px upon py, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है इज कंपेयर विद द बजट लाइन और प्राइस लाइन। सो mRSXY इंटरसेक्ट बजट लाइन और प्राइस लाइन। अब ध्यान से देखना यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को कट कर रहा है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है। आपने देखा 4:1, 3:1 as compared to the slope of budget line 2:1, 2:1। If we compare with the C point, at the C point slope of budget line is more than the slope of indifference curve। देखेंगे budget line 30 स्पीड से गिर रहा है तो budget line काट रहा है इंडिफरेंस कर्व को, तो यहाँ पर प्राइस रेशियो ज्यादा है as compared with the mRSXY। अगर आपको शेड्यूल वाइज याद है तो प्राइस रेशियो क्या आपका 2:1 और mRSXY क्या गया था यहाँ पर 1:1। तो यहाँ पर भी mRSXY और px upon py इक्वल नहीं है, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और प्राइस लाइन
कहां पर इक्वल है? बी पॉइंट पर। थर्ड कंडीशन क्या थी? इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट, कि इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन पॉइंट के कॉन्वेक्स होना चाहिए, और ये चीज यहां पर भी है। आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बन रहा है? IC2 कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन MRSXY marginal rate of substitution. So all three conditions of consumers equilibrium, what are touching point of indifference curve and budget line, slope of budget line equal to the slope of price, slope of indifference curve, and third indifference curve must be convex. All these three conditions of the consumers equilibrium will fill up at the B point. तो तीनों कंडीशन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो मैंने आपसे डिस्कस करी, वो तीनों कहां पर फिलअप हो रही हैं? बी पॉइंट पर। सो एट द बी पॉइंट पर क्या होगा हमारा? MRSXY इक्वल टू PX अपॉन PY. So it is the consumer's equilibrium point, and in the condition of equilibrium, consumer will take ON quantity of X commodity and OM quantity of Y commodity. So by this way we find the consumer's equilibrium with the help of ordinal approach or with the help of indifference curve. Okay, it is your second chapter, and from next class we will start our third chapter. It is the demand analysis. Thank you.